guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out us on Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Boney Kapoor, Madhur Bhandarkar, Nitesh Tiwari and other filmmakers attend Filmfare Roundtable event. Imtiaz Ali addresses Jab We Met to rumors. Boney Kapoor says Khushi's debut film, The Archies, took him back to school days. Aishwarya Rai Bachchan crops Jaya Bachchan and Navya from Big B's birthday post. Netizens react. On behalf of Filmfare, it gives me immense pleasure to extend a warm welcome to all our distinguished guests today. '69th फिल्मफेयर की धूम मचेगी गुजरात में। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? जनवरी 28, 2024 को सितारों का लगेगा मेला वाइब्रेंट गुजरात की धरती पर। और इस ग्रैंड इवेंट से ठीक पहले फिल्म मेकर्स नजर आए एक स्पेशल राउंड टेबल इवेंट पर। टाइम्स ग्रुप एमडी विनीत जैन और गुजरात के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल ने इस इवेंट को किया अटेंड। फिल्म इंडस्ट्री और गुजराती कल्चर का खास कनेक्शन और इसी ग्रेट बॉन्डिंग को सेलिब्रेट किया जाएगा 69th फिल्म फेयर अवार्ड की शाम को। ऐसे में मुंबई के ताज लैंड्स एंड में रिसेंटली एक फिल्म फेयर राउंड टेबल इवेंट होस्ट किया गया इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। इस प्रेस्टिजियस इवेंट को टाइम्स ग्रुप के एमडी मिस्टर विनीत जैन ने लीड किया। वहीं गुजरात के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल और ऑनरेबल टूरिज्म मिनिस्टर श्री मुलू भाई बेरा ने इसकी शोभा बढ़ाई। फिल्म फेयर राउंड टेबल इवेंट पर टाइम्स ग्रुप के एमडी मिस्टर विनीत जैन ने कहा, कैसे ये फिल्म फेयर होने वाला है सुपर स्पेशल और ये इवेंट है मोर देन अवार्ड्स। On behalf of Filmfare, it gives me immense pleasure to extend a warm welcome to all our distinguished guests today. We are privileged to have in our midst the Honorable Chief Minister of the vibrant state of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, the Honorable Minister of Tourism for Gujarat, Shri Mulubhai Bera, along with other esteemed representatives of the government of Gujarat. Your presence here signifies the unwavering support and enthusiasm Gujarat holds for the film industry. I would also like to extend a hearty welcome to our distinguished filmmakers from the industry who have graced us with their presence. Your creative brilliance continues to shape the Indian entertainment industry. For the last 70 years, the Filmfare Awards have served as a symbol of excellence, acknowledging and celebrating the remarkable accomplishments of talent within our film industry. Filmfare today is proud to be a facilitator in bringing together the entertainment industry and a canvas like Gujarat for painting your stories on. The cultural richness, vibrant landscapes, access to skilled manpower, and the warmth of its people will provide the perfect backdrop for filmmakers and their craft. The government of Gujarat has been unwavering in its dedication to provide filmmakers with the necessary support, infrastructure, and policies to make Gujarat a preferred destination for their creative endeavors. Through the launch of the well-thought-out cinematic policy, it is abundantly clear that the relationship between the two can be a mutually enriching one. I hope that today's interaction shall lay the foundation for a successful partnership between Gujarat and the Indian film industry.
I wish to stress that this gathering is not solely about the awards. It is about fostering the growth of the Indian film industry and Gujarat's steadfast commitment to filmmakers and the incredible world of Indian cinema. I eagerly await to celebrate the memorable 69th Filmfare Awards with all of you on 20th January 2024 in the vibrant and dynamic state of Gujarat. Thank you. गुजरात के ऑनरेबल सीएम भूपेंद्र भाई पटेल ने भी कहा, फिल्म इंडस्ट्री के लिए गुजरात है एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन। मैं इसे गुजरात के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखता हूँ। गुजरात में आयोजित होने वाले फिल्म फेयर अवार्ड्स तो राज्य की सिनेमेटिक और टूरिज्म कम्युनिटी के लिए एक ऐतिहासिक अवसर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि गुजरात में पहली बार फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन होने जा रहा है। यह भारत का ऐसा प्रतिष्ठित अवार्ड शो है जिसका इंतजार देश की जनता बड़ी उत्सुकता से करती है। इस अवार्ड शो के दौरान फिल्म जगत के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फिल्म प्रोड्यूसर और प्रोफेशनल्स बड़ी संख्या में गुजरात आएंगे। साथ ही इस इवेंट के माध्यम से राज्य का टूरिज्म और कल्चर का प्रमोशन, इवेंट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर में भी रोजगारी के नए अवसर खुलेंगे। इस राउंड टेबल इवेंट को अटेंड करने फिल्म इंडस्ट्री से पहुंचे जैकी भगनानी, बोनी कपूर, आनंद एल राय, जमुना दास मजेठिया, जयंतीलाल गड्ढा, आर बाल्की, निखिल अडवाणी, मधुर भंडारकर, कृष्णा डीके और राज निधि मोरू। इम्तियाज अली along with अश्विनी अय्यर तिवारी एंड नितेश तिवारी। इस इवेंट पर इन फिल्म मेकर्स ने दिल खोल कर की बात। अश्विनी अय्यर तिवारी और ओम राउत जैसे फिल्म मेकर्स ने यहाँ अपने एक्सपीरियंसेस को किया शेयर। Thank you so much for calling us here and experiencing the space of Gujarat. Question ये है कि लाइन प्रोडक्शन आपके साथ एफिलिएटेड होगा? लाइन प्रोडक्शन के जो लोग हैं और वो आपके साथ एफिलिएटेड होगा, क्योंकि क्या होता है कभी-कभी हम एक लाइन प्रोड्यूसर से बात करते हैं और उनको पता है कि वो हमें ये लोकेशन दिखाएंगे, तो थोड़े दिन बाद हमें वापस आ जाता है मैसेज करके ये अभी हमारे पास नहीं है, किसी और के पास है। फिर वो थोड़ा कंफ्यूजन है वहाँ पर। ओके, ग्रेट। काफ़ी हमारे शोज़ हैं और फिल्म्स हैं जो डेवलपमेंट में हैं और हम तो चाहते हैं कि देश के अलग अलग भागों में जाके हम लोग शूट करें, वहाँ की कलर्स, वहाँ की संस्कृति हमारे शोज़ में दिखें। तो और काफ़ी शोज़ इस वक्त जो डेवलपमेंट में हैं वो हैं गुजरात की पृष्ठभूमि में, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और कई हमारे प्रोड्यूसर्स यहाँ बैठे हैं और बाकी कल की बात हम पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि एक नई जगह हमारे लिए खुल रही है जहाँ पर हम शूट कर सकते हैं। आप किस तरह की असिस्टेंस हमें प्रोवाइड कर सकते हैं when it comes to promoting and marketing the destination to a global audience, and are there any collaborative opportunities for co-promotion? ब्रांड एसोसिएटेड में कि जहाँ पर गुजरात प्रमोट हो रहा है तो उसमें हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्लस जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वी हैव केप्ट इट टू मिनिमम। अगर गुजरात को आप एज अ ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं तो वी आर प्रोवाइडिंग इंसेंटिव। अगर आपका इवन ही योर एलिजिबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहाँ पर आपका कम है। 69 फिल्म फेयर अवार्ड्स होने वाला है मोर देन अवार्ड्स, जहां पूरे गुजरात के कल्चर और टूरिज्म को सेलिब्रेट किया जाएगा विद बॉलीवुड फ्लेवर। इस ग्रैंड इवेंट की पल पल की अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। गदर 2 और OMG 2 जैसे सीक्वल्स की सक्सेस के बाद क्या जब वी मेट 2 का भी खत्म होगा इंतजार? क्या वाकई शाहिद कपूर और करीना कपूर स्टारर के सीक्वल की हो रही है प्लानिंग? वेल, ऐसे सभी रूमर्स पर जूम एक्सक्लूसिवली लेकर आया है खुद इम्तियाज अली का रिएक्शन। यस, यू हर्ड इट राइट। फिल्म मेकर्स के राउंड टेबल इवेंट में इम्तियाज अली ने जब वी मेट के सीक्वल की पॉसिबिलिटीज पर बात की है।
क्या बोले इम्तियाज और क्या है जब वी मेट 2 को लेकर, चाहे रूमर्स की सच्चाई, चलिए आपको दिखाते हैं। रिसेंटली गदर 2 और OMG 2 की सक्सेस के बाद सुनने में आया था कि इम्तियाज अली भी 2007 की रिलीज जब वी मेट के सीक्वल की प्लानिंग कर रहे हैं। फिल्म फेयर के राउंड टेबल इवेंट में बॉलीवुड के कई प्रोमिनेंट फिल्म मेकर्स के साथ पहुंचे इम्तियाज अली से जब जूम ने एक्सक्लूसिवली फिल्म के सीक्वल पर बात की तो उन्होंने ऐसी खबरों को बता दिया रूमर। इम्तियाज अली ने कहा, I've also heard these rumors and I've also been told that there is a storyline blah blah blah, but if it is there, it's not with me for sure. I'm saying very categorically there is nothing that I am doing in terms of Jab We Met 2 right now. इतना ही नहीं, इम्तियाज ने ये भी क्लियर किया कि वो जब वी मेट की ग्लोरियस सक्सेस को दोबारा कैश करने में क्यों हिचक रहे हैं। इम्तियाज ने कहा, Film that people love, that has got fondness of the audience, is spoken about from time to time, and I am very obliged and somehow I have a lot of feeling of gratitude for that. But there's no reason to try to make another one just because they love this one, you know, unless there is a very strong reason to, unless there is a very strong story to make again. One should not really mess around. Well, इम्तियाज ने जब वी मेट के सीक्वल की बात से फिलहाल तो इनकार कर दिया है, पर अगर उन्हें इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी मिलती है कि उन्हें सीक्वल पर सोचने की जरूरत पड़े तो शायद इम्तियाज जब वी मेट का सीक्वल जरूर बनाएंगे। अमिताभ बच्चन के बर्थडे सेलिब्रेशन की ये पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की थी नव्या नवेली नंदा ने। और जब ऐश्वर्या राय बच्चन ने अमिताभ बच्चन को किया बर्थडे विश, पिक्चर क्रॉप होने के बाद रह गई बस इतनी। तो बस बिग बी के बर्थडे की इस इनसाइड क्रॉप्ड पिक्चर ने बच्चन फैमिली में अंदर ही अंदर चल रही खींचतान की खबरों को हवा दे दी है। वेल, क्या है ये पूरा चक्कर, चलिए आपको दिखाते हैं। 10 अक्टूबर की रात 12 बजे जैसे ही अमिताभ बच्चन का बर्थडे स्टार्ट हुआ, बिग बी फैंस से मिलने अपने रेसिडेंस से बाहर आए। इस दौरान बिग बी को बर्थडे विश कर रहे फैंस का एक्साइटमेंट विटनेस करने ऐश्वर्या भी वहां नजर आई और बिग बी की ग्रैंड डॉटर नव्या नवेली नंदा की झलक भी सबने देखी। वहीं अमिताभ बच्चन की फैमिली ने भी सेलिब्रेट किया बिग बी का बर्थडे, जिसकी इनसाइड ग्लिम्स खुद नव्या नवेली नंदा ने इस पिक्चर के जरिए शेयर की, जिसमें बिग बी के साथ आराध्या बच्चन, नव्या नवेली नंदा, जया बच्चन और अगस्त्य नंदा नजर आ रहे हैं। पर बिग बी के इस बर्थडे सेलिब्रेशन में एक ड्रामेटिक ट्विस्ट तब आया जब ऐश्वर्या ने सेम पिक्चर शेयर करते हुए बिग बी को किया विश और लिखा ऑलवेज गॉड ब्लेस। लेकिन सोशल मीडिया पर जब सेलिब्रेशन की इनसाइड फैमिली पिक्चर इस हालत में क्रॉप्ड होकर सामने आई तो नेटिजन्स ने मचा दिया बवाल। एक यूजर ने क्रॉप्ड पिक्चर नोटिस करने के बाद कमेंट करते हुए लिखा, I thought it was a joke, but she has literally cropped out other 3. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, intentional or not, don't know, but Aishwarya has always been posting Aradhya and Amitabh's photo for Amitabh's birthday. लेकिन कुछ यूजर्स का ये भी मानना है कि बच्चन फैमिली में अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है और ऐश्वर्या ने रिसेंटली पेरिस फैशन वीक 2023 में हुई ऐसी ही इंसिडेंट का बदला चुका दिया है। एक्चुअली नव्या नवेली नंदा ने रिसेंटली PFW में किया था रैंप डेब्यू, जिसके बाद अक्टूबर 5 को नव्या ने जया बच्चन और मॉम श्वेता बच्चन के साथ अपनी पिक सोशल मीडिया पर शेयर की थी। और तो और ऐश्वर्या के सेम इवेंट ग्रेस करने के बावजूद नव्या ने अपनी पोस्ट में ऐश्वर्या को टैग भी नहीं किया था और नेटिजन्स का मानना है कि ऐश्वर्या ने बिग बी और आराध्या की पिक्चर से बाकी फैमिली मेंबर्स को क्रॉप करके उसी बात का हिसाब क्लियर कर दिया है। SRK की डॉटर सुहाना खान और श्रीदेवी की डॉटर खुशी कपूर की डेब्यू फिल्म देखकर ऑडियंस को होगी क्या फीलिंग, इसका फर्स्ट रिएक्शन आ गया है। खुशी के फादर बोनी कपूर ने देख ली है दी आर्चीज और जूम पर एक्सक्लूसिवली आ गया है हाईली एंटिसिपेटेड दी आर्चीज को लेकर इंडस्ट्री से पहला रिएक्शन, क्योंकि बोनी कपूर ने फिल्म फेयर राउंड टेबल इवेंट में रिवील कर दिया है कि दी आर्चीज का कंटेंट ऑडियंस को देगा क्या इम्पैक्ट। तो चलिए आपको दिखाते हैं दी आर्चीज देखते हुए बोनी कपूर के मन में क्या आई फीलिंग्स।
फिल्म फेयर राउंड टेबल इवेंट के रेड कार्पेट इंटरव्यू में जब बोनी कपूर से पूछा गया दी आर्चीज को लेकर सवाल, तो बोनी कपूर जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए अपने स्कूल डेज को लेकर नजर आए बेहद नॉस्टैल्जिक, क्योंकि वो खुद भी रहे हैं बिग आर्चीज कॉमिक फैन। बोनी कपूर ने कहा, I saw the film too and it took me back to my school days when I was a big Archie comic fan. So it's been recreated to the T. यही नहीं, जब बोनी कपूर से पूछा गया कि क्या उन्होंने एक्टिंग करियर स्टार्ट करने पर खुशी को दिया कोई खास गाइडेंस या एडवाइस, तो बोनी कपूर ने अपने आंसर से हमें सरप्राइज कर दिया। बोनी कपूर ने कहा, They have grown up in a proper environment, so they don't need advice. In fact, I seek their advice. इसके अलावा बोनी कपूर से हमने मिस्टर इंडिया के सीक्वल को लेकर छाई रहने वाली खबरों के बारे में भी पूछा, तो बोनी कपूर ने मिस्टर इंडिया 2 की पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा कि अभी सीक्वल को लेकर प्लानिंग होराइजन पर है, चीजें मटेरियलाइज होने में फिलहाल वक्त लगेगा, पर मिस्टर इंडिया के सीक्वल को लेकर उनका इरादा पक्का है। मिस्टर इंडिया 2 कब मटेरियलाइज होगी फिलहाल कहना मुश्किल है, पर दी आर्चीज जल्द ही ऑडियंसेस के सामने आ रही है। जोया अख्तर की इस फिल्म में अगस्त नंदा, सुहाना खान और खुशी कपूर लीड रोल्स में नजर आएंगे, और फिल्म देखने के बाद बोनी कपूर का फर्स्ट रिएक्शन ये इशारा जरूर कर रहा है कि ऑडियंस को भी फिल्म देखने के बाद अपना स्कूल डेज वाला टाइम जरूर याद आएगा। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बट हे, स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while. चंदू चैंपियन के लीड स्टार कार्तिक आर्यन ने खुद को भी चैंपियन प्रूव कर दिया है, क्योंकि उन्होंने सिंगल टेक में शूट किया है एक 8 मिनट लॉन्ग वॉर सीक्वेंस। यस, यू हर्ड इट राइट। ये मामला उनकी अपकमिंग फिल्म चंदू चैंपियन की शूटिंग का है। तो फिल्म के सेकंड स्केड्यूल में कार्तिक का हार्ड वर्क कैसे बना रहा है एक नई हाईलाइट। कार्तिक ने कैसे सिंगल टेक में कंप्लीट किया 8 मिनट लॉन्ग वॉर सीक्वेंस, और ये भी कि इस स्पॉट ड्रामा फिल्म में कहां से आ गया वॉर, और लंदन स्केड्यूल के बाद कार्तिक अब कहां कर रहे हैं चंदू चैंपियन की शूटिंग। ये सभी अपडेट्स आपको हमारी ये स्टोरी देखने पर पता चल जाएगी। सी लेवल से 9000 फीट की ऊंचाई, जम्मू कश्मीर की खूबसूरत अरू वैली, लेकिन 1965 के वॉर की रिक्रिएशन। वेल, यही है कार्तिक आर्यन की अपकमिंग फिल्म चंदू चैंपियन का एक बड़ा अपडेट। पर जो बात कार्तिक के फैंस को भी हैरान कर देगी वो ये है कि कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म के लिए सिंगल टेक में शूट किया है 8 मिनट लॉन्ग वॉर सीक्वेंस, और ये अपडेट भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद कार्तिक ने ही अपने फैंस को दिया है। कार्तिक ने अपने सोशल मीडिया पेज पर चंदू चैंपियन की एक पिक शेयर करते हुए लिखा, This 8 minute long single shot war scene turned out to be the most challenging, spectacular, and yes, difficult, but also the most memorable shot of my acting career. Thank you, Kabir Khan sir, for giving me a memory to cherish for a lifetime. #Chandu Champion. सोर्सेज से पता चला है कि इस वॉर सीक्वेंस के लिए कश्मीर की अरू वैली में मैसिव आर्मी कैंप का ह्यूज सेटअप भी लगाया गया था। इतना ही नहीं, शूटिंग से पहले कार्तिक आर्यन, विजय राज और भुवन अरोरा के साथ 5 दिन तक सिर्फ रिगरस रिहर्सल्स ही की गई। तब कहीं जाकर कार्तिक आर्यन अपने करियर के इस मेमोरेबल मोमेंट का हिस्सा बन पाए। बता दें कि चंदू चैंपियन में कार्तिक इंडिया के फर्स्ट पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और फ्री स्टाइल स्विमर मुरलीकांत पेटकर की लाइफ और जर्नी को बिग स्क्रीन पर पोर्ट्रेट करते नजर आएंगे। इसके अलावा खबर है कि कार्तिक की किटी में आशिकी 3 और भूल भुलैया 3 भी आ सकती हैं, क्योंकि मेकर्स और कार्तिक के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि कार्तिक के फैंस तो फिलहाल अपने फेवरेट स्टार को चंदू चैंपियन में देखने के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.